Record. ये वकास आए हुए। मोहम्मद अहमद, हमजा, अब्दुल्ला, रिजवान, अरशान, एहसन, शीरी, शाहिद। ठीक। Yes. You can, as your comfort. Bismillahirrahmanirrahim. The topic which I intend to take is the prevention review of convolutional neural networks for defect detection in industrial applications. So, before going on to this project, कुछ research papers मैंने देखे थे related to this. It was how to build a convolutional neural network from scratch for simple image classification task. And then there was another one, convolutional neural network, the architecture and its applications. But finally, I came up to this paper, which was the comprehensive review of convolutional neural networks for defect investigation in industrial applications. Now, actually, this paper does not provide any data set, and this does not provide any code. And this was purely intentional because I wanted to develop a code by myself from scratch for CNN. And this application, defect detection industrial applications, I'm looking for different type of data sets. For the time being, I have three options. There are some of the data sets which are available on the internet. Then there is a data set which I'm trying to look after. It's within Army's archive, but I will to have access to it. That was regarding those models in which there is explosive fillings, and these explosive fillings have different types of voids in them. The third option is that I think the instructor has also developed his own data set and is also done
an analysis on those aircraft wings and aircraft structures. So if I get hold of that data set, I can use that data set over here as well. First of all, the context, inspection, defect detection, they are fundamental to any quality assurance. And this can be undertaken by convolutional neural networks. They have gained significant capabilities to date. And this will be directed at core mathematics, how mathematics is actually translated into artificial intelligence. So something about convolutional neural networks. So we have different images. Now, normal artificial neural networks, they have got a limitation because they cannot extract spatial information from an image. Image is not just a bunch of pixels that's been going. अभी तक हम छोटी मोटी एग्जांपल्स करते रहे जिसमें आप एक वेक्टर या ए को लिखते हैं जो लास्ट टाइम ये में बताया गया था. A names can only deal with that. But once you have a complicated type of image, for example, a picture of a dog or a cat or anybody, तो उसके अंदर पिक्सेल्स की relative neighboring information भी conserve करना आसान और जरूरी होती है. For that, you need something like a convolutional neural network. It consists of different convolution layers. इसके साथ maximum layers भी होती हैं. Convolution layers के ऊपर एक kernel जो होता है उसके ऊपर implement किया जाता है और वो feature extraction करता है actually. But we have heard that deep learning के अंदर आपको feature extraction as such नहीं करनी पड़ती, खुद से नहीं देनी पड़ती. ये सिस्टम खुद feature extract करता है. ये feature extract करता है उसमें एक आध layer होती है which is called a बीच में layers होती है जिनको कहते हैं pooling layers. उनका काम ये होता है कि ये जो इतनी बड़ी फ्रेम है पिक्चर की उसको आखिर में इसको रिड्यूस किया जाए, उसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करके उसके डाटा को रिड्यूस किया जाए ताकि उसके बाद ये जो बाकी का है from flattening layer till this आखिर में softmax activation होती है output. This is classical artificial neural network. इसको ये फीड किया जाता है. So now that we have understood कि इसके मुख्तलिफ components क्या होते हैं, तो where do I stand now? I've already started working on my own libraries because we will not be involving any TensorFlow, PyTorch, or Keras. हमने खुद libraries को build करना, which is the main theme. Then I'm also developing different type of image motors ताकि मैं मुख्तलिफ तरह के images को load कर सकूं. जो आप देख रहे हैं येलो में और ग्रीन में ये तो बिल्कुल मस्ट हैं ये करने के लिए. और जो आप अभी रेड में देख रहे हैं these are optional components of this project. So regularization definitely करनी पड़ेगी. ये तरीका होता है जो हम बाद में सीखेंगे. इसके ऊपर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं वो काम जिनके क्रॉस जो ग्रेडियंट्स हैं या वेट्स हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते हैं इतना सोल्यूशन की तरफ और कुछ के कर रहे होते हैं. तो आप रैंडम के ऊपर कुछ न्यूरॉन्स को टर्न ऑफ करवा रहे होते हैं. बट आई एम ऑल्सो studying this actually है क्या regularization so that I can implement it. Then this is basically use of Numba. Numba is a library basically जो आपके normal Python कोड को थोड़ा सा fast execute करती है. आपने देखा होगा Python की execution process slow है. ये interpret कर रहा होता है line by line. So it uses the concept of just-in-time compilation ताकि when you start dealing with images, तो the data is so intense कि आपकी जो भी कोड होगा वो बड़ा स्लो रन करेगा. तो I hope इसको मैंने काफी पढ़ लिया. So I hope this use of Numba will expedite but will take it. बीच में सर ये है कोई मिनी इको अपडेट्स. हमने अभी एक इको का कॉन्सेप्ट देखा है कि इको क्या होती है. जैसे हम डैश पे से एक दफा गुजर चुके होते हैं दैट्स कॉल्ड वन इको. लेकिन कभी कभी होता है इट इज टू लेट इमेजेस की फॉर्म में क्योंकि इमेजेस पे डाटा में हैवी होते हैं कि आप इको का वेट नहीं करते. आप इको के बीच में भी जहाँ इटरेशंस होती हैं आप कोशिश करते हैं कि आप अपने आप की कोर्स करेक्शन करना शुरू करें. सो दिस इज दैट. कुछ ऑप्टिमाइजेशन का काम मैं अभी कर रहा हूँ. बेसिकली जब आपने ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा था और देयर वाज अ वे कि वेट्स को अपडेट कैसे किया जाता है. सो देयर डिफरेंट वेज कि जिसके अंदर वेट्स को अपडेट किया जाता है. सो इनके अंदर ग्रेडियंट डिसेंट भी है, मोमेंटम एडाग्राड और इस प्रॉब्लम I try to मैं maximum कितने इसमें कर सकता हूँ और फिर मैं different combinations देखूँ इससे. real time convergence monitoring उसके अंदर हमारा loss function primarily plot हो रहा हो with relations ताकि हमें पता लगे कि वो loss function नीचे की तरफ जा रहा है. The loss should minimize actually during that training session. And this is an optional. And the software environment which I tend to use is to my ID use करूँ Sublime Text है with Linux Mint. Oh, that was it. ठीक है सर.
Excellent. थैंक यू सर। आप आएंगे सर या रैंडमली किसी और को बुला लो? बैठे एक में पहले देख, जो पहले जिसने भेजा हुआ है उसको बुला लेते हैं। अच्छा, अगर आपने भेजा हुआ है तो आपको बुलवा लेते हैं। व्हाट्सएप पे मैं वही देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे सबसे पहला मैसेज किसका है। जी, मोहम्मद अहमद। थोड़ा सा दूर जा क्या? Only private. My name is Muthu and the project is estimating remaining useful life prediction for aircraft engines. The challenge in engine maintenance is basically mostly maintenances in the industry are reactive when a failure occurs. But this approach is making the maintenance as proactive, as predicting what the remaining useful life of a machine is there, and we can change the apparatus for it fails. So traditional approaches, reactive maintenance is after failures require expensive historical data, heavy reliance on domain expertise, as we require special experts for engine maintenance, and limited generalization across engine types. Why prediction matters is to eliminate unplanned downtime, optimize component placement timings, extend engine operational lifespan, and reduce maintenance cost significantly. The approach which is long short-term memory using this paper is outperforming the prediction methods. The prediction methods put the earlier percent counts is let's say a classic approach in machine learning. The advantage of this long short-term memory is that it's keep a track of the data stored, check if it is degrading or the graph is going up or going down. The data set and data pipeline, basically the data used here is NASA data sets of turbojet engines. They gathered that data set using a digital twin from actual engines, and basically this data is simulations of that digital twin of that engines. Firstly, we will select the sensors from the data set. Most of the sensors are unidentified and have a very noisy output. After selecting the sensor, we will do a noise reduction, then normalization, and then sequence generation. The training architecture comparison, both the MLP and STM. MLP basically takes every data point as a single snapshot. It doesn't know whether the data is degrading or graph is going up or graph is going down. Other than that, the architecture is quite the same. We will use PyTorch, and the hyperparameters are same for LSTM and the training performance for LSTM in this graph is showing quite good output. The mean square error is going down with the box as compared to MLP, where the validation loss and the training loss is quite great after so many box. Prediction accuracy, LSTM versus reality. The LSTM models predict closely follow two remaining useful life values across diverse single units from the data. And the prediction accuracy MLP, it doesn't show that much good results after a lot of box. The implication and future directions are operational impact on the engine's output, industrial scalability of LSTM models, search opportunities in space and other industrial data, and safety excellence
on predictive maintenance in the industrial applications. रिसर्च पेपर आपने दिखाया नहीं, कौन सा रिसर्च पेपर? सर रिसर्च पेपर इसका जो मैंने चूज किया था उसका प्री प्रिंट मेरे पास था, लेकिन एक्चुअल रिसर्च पेपर उसके बाद कॉन्फ्रेंस पेपर था जो 5 में उसका पब्लिश किया, लेकिन वो लॉग था उसका, मुझे प्रिंट नहीं, प्री प्रिंट है उसका मेरे पास आर्काइव्स में था। ठीक है, आप शेयर कर लीजिएगा, मैं आपको मैं भेज आपको- दूंगा ताकि आप उसको फॉलो करें। ठीक है, बाकी एरिया ठीक है, आपने डाटा सेट भी डिसाइड कर लिया है, प्लेटफॉर्म भी डिसाइड हो गया है, और रिसर्च पेपर भी इसका है, तो इट वुड गिव यू अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पाइपलाइन के किस तरीके से चीज़ें उसने प्रोसेस की हुई है, तो गुड एरिया। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। वकास। ठीक है बस। सर रिसर्च पेपर जो मैंने पढ़ा है सर, आई वाज ट्राइंग टू गेट more about aviation related project, but I could not find with that proper data process. So recently मैंने सर ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक रिसर्च पेपर स्टडी किया है सर। ये यूएसए की दो यूनिवर्सिटीज हैं, उसके 6 रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये सर इसको पब्लिश किया है लास्ट ईयर जुलाई 20। सर बेसिकली उनका पर्पज ये है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसकी वजह से हमारी रीशेप कर रही है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्योंकि इसमें बहुत सारी हमारी एआई, आईओटी एंड ऑटोमेशन बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होती है, और इंजीनियर स्पेसिफिकली जो है ना मशीन लर्निंग में वो उनको बैरियर फेस हो गए हैं, तो क्योंकि ना उनका नॉलेज जो है प्रोग्रामिंग का बहुत कम होता है उस प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग नेट जो इन्होंने बनाई है उसकी वजह से ये कि इंजीनियर्स को ये मॉडल बिल्ड अप करने में असिस्ट करती है सर, और इसमें मिनिमम कोडिंग। सर ये ओपन सोर्स पाइथन पैकेज है सर, इंडस्ट्रियल मशीन लर्निंग के लिए, और स्पेसिफिकली डिजाइन है इंजीनियर्स के लिए, कि वो उसमें अपने इनपुट्स को करके और डिजाइन डाटा वो कर सकते हैं सर। इसमें प्री ट्रेन मॉडल हैं सर, बेंचमार्क डाटा सेट्स हैं, और टिप वर्कफ्लो। सर इसमें एल्गोरिथम जो यूज हुए हैं सर दोनों तरह के हैं सर, कन्वेंशनल मशीन लर्निंग के भी हैं और डीप लर्निंग के भी हैं सर। उसमें कन्वेंशनल में लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फिर ये स्मॉल वेक्टर मशीन, रैंडम फॉरेस्ट और जी बूस्ट के लर्निंग भी इसमें इन्वॉल्व है, और इसी तरह डीप लर्निंग में एमएलपी, एसडीएनएन, एलएसटीएम और 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होते हैं, डीप लर्निंग वो भी होते हैं। डेटा सेट डोमेन जो इन्होंने यूज किए हैं सर, वो मैन्युफैक्चरिंग में मेन जो है यूज होती है सर, सिग्नल प्रोसेसिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, कास्टिंग, टेस्ट बेंच और मशीनिंग। ठीक है सर इसमें आप वो डिफरेंट टाइप के उन्होंने डाटा सेट्स लिए हैं सर। सिग्नल प्रोसेसिंग में जो फैन है प्रोफेसर सी, ये दो यूनिवर्सिटीज हैं जिनके ऊपर डाटा सेट्स अवेलेबल हैं, और सिग्नल प्रोसेसिंग में मोस्टली वो इनको यूज करते हैं, वो इन्होंने अपने डाटा सेट को रिलेशन है प्रोसेसिंग के लिए सर। वाइब्रेशन डाटा का अगर एनालिसिस करें तो उसमें 20+ सिग्नल फीचर्स इनके पास अवेलेबल हैं इनके उसमें टूल्स में, जिसकी वजह से आज इसके मेन जितने भी एमबी मीडिया के उसका भी वैल्यूज है सब वो आप उसे और सिंप्लीफाइड कमांड्स है फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन, और सपोर्ट करता है एससीएसआई एंड इवेंट बेस्ड डाटा सिस्टम।
सर वर्कफ्लो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सर जो इसका प्रोसीजर है सर, इंपोर्ट करते हैं मॉडल को, डाटा सेट को, लोड करते हैं, प्रिपेयर करते हैं डाटा को, फिर ट्रेन करते हैं मॉडल को, उसके परफॉर्मेंस मेट्रिक्स को आप व्यू करते हैं, और फिर आपका जो भी स्पेसिफिक मॉडल है उसमें आप उसको, ये अभी तक जो उन्होंने जितने अभी तक बेंचमार्क है डिफरेंट एरियाज में इनको अप्लाई करके जो उनके रिजल्ट्स हैं, इसमें वो मैक्सिमम 98-99% तक की वैल्यू है, तो अच्छी। एकेडमिक एलिमेंट सर, ये आइडियल है सर मशीन लर्निंग के लिए, वो स्टडी करने के लिए और उसको लेबल करने के लिए आप अपने वर्किंग की रिक्वायरमेंट है। इससे आप अपनी प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग को दूर कर सकते हैं सर। सर फ्यूचर डायरेक्शन में ये है कि ये आप यूज करके अपने जितने भी अपने रेलिवेंट फील्ड्स हैं उसमें इससे आप प्रोसेस है ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, और इजीली अवेलेबल है, ट्रेंडी स्टूडेंट्स भी होगा आप अपने। ठीक है वकास, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग नेट तो इटसेल्फ एक अच्छा एक टूल है जो कि बताऊँ। इसमें से मेरी आपको सजेशन ये होगी कि किसी एक चीज़ को अगर आप सर देख लो, ले वाइब्रेशन का डाटा फॉर एग्जांपल अगर इनके पास है उसको आप उठा लें, सर और वाइब्रेशन के डाटा के ऊपर कोई रिसर्च पेपर देखते हुए आप उसको खुद एक सादे से कोड के साथ इम्प्लीमेंट करके रन सर करके पूरे प्रोसेस के अंदर से गुजर जाओ, तो शायद वो ज़्यादा उसकी आपके एकेडमिक वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी आप। या ये कि आप इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से कुछ और भी सोच सकते हो, जो आपके कोर एरियाज हैं लाइक क्वालिटी इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से प्रोबेबली कोई चीज़, या आजकल ये जो आपके कुछ लोग पीएचडी में काम कर रहे हैं टुवर्ड्स दी डिजिटल ट्विंस, उस तरफ या ब्लॉकचेन की तरफ थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्टिगेट करोगे, किसी एक सुपरवाइजर से बात करोगे, तो क्योंकि आपने भी थीसिस तो करना है ना, सर तो उस हवाले से अभी से कोई टॉपिक डिफाइन करके आप उसको यहाँ पे लेकर आ सकते हो। उसका एक इनिशियल होमवर्क हो जाएगा, बाद में उसको आप रिफाइन कर लीजिएगा, इम्प्रूव कर लीजिएगा। सर तो मेरा तो मैन था कि वो मैन्युफैक्चरिंग में कास्टिंग का जो प्रोसेस है कास्टिंग को उठा लो, उसको सर एक कास्टिंग को उठा लो, गेम में करा। कास्टिंग को उठा लो, बिल्कुल उसको आप लिंक कर लो अपने एएमएफ के साथ सर या पीएई के साथ, सर और अकॉर्डिंगली डाटा वहां से भी ले सकते हो, इधर भी अवेलेबल है। तो ये तो इमीडिएट अवेलेबल है, और से आप इसको ऑल रियल टाइम करना चाहते हैं तो अवेलेबल, आप जिस अपॉइंटमेंट में हैं शायद वहां से आपको काफ़ी इजी एक्सेस कुछ चीज़ों की मिल सकती है। तो मेक यूज ऑफ दी थिंग्स हेयर, बट अगेन ट्राई टू डू इट योर सेल्फ, ताकि वो आप फिर ज़्यादा अच्छा उसको आई वुड से कि आगे कहीं इस्तेमाल कर पाओगे या समझ पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें इस पर्सपेक्टिव से देख के तो मुझे फिर आपने दोबारा बताना है। ठीक है, कोई एक रिसर्च पेपर जरूर निकालें उससे रिलेटेड जो आप बात कर रहे हो, और फिर उसको उस डायरेक्शन में लेके जाओ। सर ये भी वैसे रिसर्च पेपर स्टडी का। बट ये कि ये शायद बहुत ज्यादा एक बड़ा काम है, सर या ये आपके लिए शायद थोड़ा सा इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा सर इन दी स्मॉल टाइम पीरियड। तो इसमें से किसी एक डोमेन को उठा के उसका रिलेटेड पेपर और उससे रिलेटेड चीजें, और उसको आप इम्प्लीमेंटेशन में ले लो। सर ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। प्रेजेंटेशन आपने ये बनाई है या किसी टूल को यूज किया है? ये जो रॉकेट शॉकेट नजर आते हैं ना, ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि किसी टूल को इस्तेमाल किया। अरशान। ये That point, the research paper which I selected is CFT bench. It's a large scale benchmark for machine learning methods in dynamics. Which effort convert CFT data into a data.
or another website say build an AI model based on the CFD paper. It is a Chinese paper of the University of Beijing, in the Beijing University in Beijing. Before going into the details, let me give you a glimpse of what is a CFD. CFD, most of you know, in mechanical engineers, stands for computational fluid dynamics. It's widely used to predict the behavior of fluids. And while solving a CFD problem, CFD needs to upload problems. What is known as the fluid properties, boundary conditions, or geometry. And what you want to compute in CFD is the velocity and the pressure parameters. Just before going ahead, about everything, one thing there, it is CFD is computationally very expensive. If you have a very complex geometry, just I've showed you. This is the screenshot of a system is using 340 GBs of RAM. So the problem basically is that you have to use a lot of computational power to compute very small problem or a small problem in a small time domain. We are solving this type of complex partial differential equations, non-linear partial differential equations. So this the lead expert feeds this system, this data into an AI model. A lot of effort has been done, but the problem is if you change one of these property, the system goes in. So it is very difficult to train a model which can incorporate all of these things. So this is your we don't have flexibility of changing the parameters. We want to change the parameters or boundary condition predictability has a lot of errors. But the system specific training has very good results in terms of time. For example, this is a CFD result of our moving an air or moving on a road. It takes 12 hours to complete a fully model of this car. However, if you apply an AI model, it just takes 20 milliseconds to give the answer. So if you apply it on a specific model, it is very useful, but it cannot be generalized. It is very difficult to generalize a model in this paper. In this coming towards paper, in this paper, there are 4 basic CFD problems which has been discussed. One is the jet-driven cavity. In jet-driven cavity, the box which is open on one side, there is going over the box. For example, the weapons tray of a jet aircraft, which when opens, it becomes a jet-driven cavity. Next is the tube flowing through a tube, just a pipe. Next is the dam flow. Actually, this is actually not a dam, but it is why it is called dam flow because in case of dam, water comes here, so there is a small obstacle in front of it. Actually, it is a flow which is depicting obstacle needs fit. And third is the most common used to apply a flow over a sun. So in this case, I have selected this tube flow to demonstrate or to replicate what has been done. So I'll be focusing on the tube flow. Being easiest and so to start with, so the concept is we have some input parameters and we are getting some output parameters. What they have done is they have introduced their operating parameters in the model. These operating parameters, these are the boundary conditions which I have told you initials. These are the boundary conditions. These are the fluid properties. V is viscosity and density, and rho is density. And D and W are the geometrical parameters that well have done. What they have done, they have introduced these parameters into the system. Now coming towards the features, the parameters which I have shown you the previous slide, the properties, boundary conditions, and geometry. Based on these parameters, 7 different combinations have been found, which are given the name of actual features. Actually, these are features which have been done. The properties, boundary conditions, geometries, property plus boundary conditions, properties plus geometry, and boundary conditions plus geometry, and the 7th one is 30 polynomial. And what we are determining in this case is the x and y component of the class. In this case, this paper, there are a total of 759 cases, and the strings are 3 flat 22,000. The environment which has been used is the PyTorch, but I am not using PyTorch, but I am using Colab. The AI models which have been used in this paper are auto-recursive and non-auto-recursive. Just to give you a difference between these 2 types of models, the auto-recursive model is calculates based on the time.
it calculates the next velocity field or the next data based on the type of the previous data. However, in case of non-autoregressive models, they just compute the data fixing on the same time. And these are the two models which have been used for the autoregressive models, and these are 4 models which are in the field of non-autoregressive that we use in this data. The modeling has been done based on the basis of these 3 errors, but the LMSE localized mean square error has been kept as a main for validation purpose and for judging the validation of training. Now coming towards the model which I have done, training of model which I have done. So first of all, the neural network covered the network. Environment is Google Colab, KSS T2, the backside I've kept as 32, Fox 50, and the learning rate is 0.01. It was difference in the paper. In the paper, the learning rate was 0.9 and the Fox size was 40. But I was not getting that correct. I've changed these sets, I've changed the code to get the exact training values, which have values for the getting to that value. These are these 3 error codes which are called SSD, MSC, NMSC, and PNSW. These training and validation data are showing that we are well in that means the training is being done. Now, after training of the data, I have validated my training. The data of the data shows in the table. This is the upper graph is showing these 3 errors which have been done, which has been given in the paper by the authors. The lower portion of the graph is the one which I have developed myself. This code. These are the 3 color pieces. The blue one is the NMSC as the main, green is the MSC, and red one is the MAE. They have to Similarly, the same color coding has been followed with the downstairs. So if you see the values, there was a it should be the system, so I not enlarge the form of the system, so maybe it's a bit difficult for to read here. But there are values of conformity there, with at least within the 10 to 20% of the error. So this shows that model has been developed for correctly, and the errors are within the limit. It is able to predict these values in the same way as the writer has been done. Now, sir, coming towards the next video effort, that is DeepNet, I have completed the auto-regressive models, not the non-auto-regressive models. Up till now, auto-regressive models. Same conditions, but the learning rate has been decreased further, because I was not getting the results. Again, the validation and training curves for DeepNet, and these are very conformity to each other, showing the 2 threads. And now, again, the validation, the same way, the errors, upper portion is showing the errors, which also have given. I have extracted the data from the paper, and this is the graph of the model which I have made using the same different environment. This this has been done in PyTorch, and this has been done in the code using my data. The real challenge up till now was to segregate the data, because the data was containing 4 cases which I have shown earlier, Q-flow, that flow, and the other one. But I have focused on Q-flow. The main challenge was to extract the data of the Q. Second was train the model, because it was a raw data, it was not a finished data. Cleaning the data into finished data. So up till now, I have been able to demonstrate or replicate the auto-regressive models. The future, the next coming years, can go for non-auto-regressive. So better go. Yes, and I see your interest, or I'm happy आप ये जैसे वो इस तक चीजों समझ के उसको replicate भी कर लिया, that is good. So that is good. और ये मेरे ख्याल में it's take it as an opportunity to decide about your thesis areas as well, all of you. आपका आधा काम हो जाएगा, बाकी काम जो है वो आप फिर रिफाइनमेंट में जा सकते हैं. तो गुड वर्क जी, थैंक यू. सर फवाद सर, आपने पीपीटी भेजी हुई है. पेपर भी खोल लो सर, मैं खोल देता हूँ, मैं खोल देता हूँ.
फिर उससे बात करेंगे। यस। और एक तीसरी चीज़ भी रिक्वायरमेंट है, वो जो मेरे ड्राफ्ट रिजल्ट्स हैं ये भी खोल लो। जो वो भी करेंगे। ठीक है सर। So I'll start with the paper. मैं पहले आपका पेपर खोल लेता हूँ उसमें। So this is your document. We close on the suspense. इसमें से कौन सी डॉक्यूमेंट खोल? ये बात ये ऊपर जो आपका स्क्रॉल में देखे ना सर, ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट खोल लूँ सर या सेकंड वाली? सर ये भी चले मैं तीनों खोल रहा हूँ सर, आप पे देख लें इसको। एक ये खोली हुई है सर। यहाँ से स्टार्ट। ठीक है सर। थैंक यू। तो लेट मी शेयर इट इन दी ऑन दी दिस। लॉग से मदद से कुछ को स्टोर ना चले आज यू कैन ऑलवेज डू इट। से स्टोर नहीं होगा। करें आज। अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ फवाद। जो मैंने पेपर ये सिलेक्ट किया दैट इज़ अराउंड अबाउट एक टूल है एरोडायनेमिक एनालिसिस फॉर एरोफॉइल्स। आइडिया ये है कि आप जब विंग डिजाइन करते हैं किसी एयरक्राफ्ट में, तो उसका जो बेसिक क्रॉस सेक्शन है विच इज एरोफॉइल, उसको आप आपके पास बहुत से कंटेंडर होते हैं उन एरोफॉइल्स टू प्लग इनटू दैट, टू इंसर्ट इंस्टॉल फॉर द विंग। तो उसको एरोडायनेमिक एनालिसिस करने के लिए देयर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल। इस पेपर में जो उन्होंने एनालिसिस किया है वो ये किया है कि कुछ जो टूल्स हैं वो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है बट उनके रिजल्ट्स इतने एक्यूरेट नहीं। लाइक न्यूरल फॉल इज वन सच टूल। उसको उसने कंपेयर किया कि एक एक्स फॉल एक टूल है जिसके रिजल्ट्स बहुत एक्यूरेट हैं बट उसकी कंप्यूटेशनल टाइम जो है वो इतना ज़्यादा है कि वो फिर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। सो उसने कंपेयर किया है कि स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी का जो ट्रेड ऑफ है उसको प्लॉट किया उसने। और फिर उसने आप आगे चल के आपको बताता हूँ कि उसका फिर फायदा क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे वो इस मॉडल में वो ये बता रहे हैं कि जो आपकी देयर अबाउट इसकी जो इनपुट पे है, इसका इसका जो डाटा सेट है, ट्रेनिंग डाटा सेट, न्यूरल फॉल ने इसको इंपोर्ट किया फ्रॉम एक्सफॉल। देयर आर मिलियंस ऑफ रन्स जो उन्होंने एक्सफॉल पे रन किए, जो कि जिसका कंप्यूटेशनल टाइम बहुत ज़्यादा है। और न्यूरल फॉल ने उसकी बेसिस के ऊपर जब ट्रेनिंग की, तो उस ट्रेनिंग की बेसिस पे इसने जब इसको आप एक एरोफॉइल फीड करते हैं, उसकी एरोडायनामिक एनालिसिस करके आपको लिफ्ट कोएफिशिएंट, जो ड्रैग कोएफिशिएंट और उसके जितने भी बाउंड्री लेयर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको कैलकुलेट करते हैं। जब आप वो कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर आपका जो एंड स्टेट ऑब्जेक्टिव होता है, जो ये आपको दिस डीप न्यूरल नेटवर्क टूल, वो आपका जो इंटरेस्ट होता है ये कि ये आपको कैलकुलेट करके बताए कि व्हाट इज द बेस्ट लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो ऑफ दैट एयर। बिकॉज वो एक खास एंगल ऑफ अटैक के ऊपर है, तो ये वो बेस्ट लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो भी निकालता है और वो एंगल ऑफ अटैक भी आइडेंटिफाई। द ओनली डिफरेंस इज के इसका कैलकुलेशन कंप्यूटेशन टाइम इज 200 टाइम्स लेस एज कंपेयर टू एक्स फॉइल, बट रिजल्ट्स आर फेयरली एक्यूरेट। और ये वो इनपुट्स हैं जो वो इसको ये फीड करते हैं और आउटपुट्स पे इसके ये एरोडायनामिक करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। अच्छा, ये इंडिकेट करते हैं सर कि ये जो एयरफॉयल है, इससे जब आप इसको
इनपुट पे एयरफॉल कोऑर्डिनेट्स देते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स देते हैं। जब आप उसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स देते हैं तो इस जो डीप न्यूरल नेटवर्क है इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू 18 मैथमेटिकल पैरामीटर्स। अब ये डिफाइन करते हैं कि 9 पैरामीटर्स आर ऑन द अपर सरफेस, 9 पैरामीटर्स आर ऑन द बॉटम सरफेस। 9 + 9 18। वो जो फीचर एक्सट्रैक्शन का जो हम एक फीचर पढ़ते हैं ना डीप न्यूरल नेटवर्क में, तो वो जब 18 पैरामीटर्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद कंप्यूट करने के बाद ये उसके लिफ्ट एंड ड्रैग कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करता है एट द आउटपुट। And this neural foil is effective for slow moving aircrafts, not subsonic regime में ये effective है, not in the supersonic regime। अच्छा, ये जो न्यूरल फॉल है इट इज अ हाइब्रिड मॉडल जिसमें डीप लर्निंग भी हो रही है और जिसमें फिजिक्स के लॉज एम्बेडेड हैं। जैसे जो एरोडायनामिक लॉज जो बाउंड करते हैं, फिजिक्स के लॉज जो एरोडायनामिक प्रिंसिपल्स को बाउंड करते हैं वो इसमें एम्बेडेड है। तो अगर आप फर्ज करें कि अगर नेटवर्क जो इसका मॉडल है किसी स्टेज पे डी ट्रैक हो, यानी अब जब ये टुवर्ड ट्रांसोनिक रेजिम जा रहा होता है तो इसकी एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है। उस स्टेज पे ये अपने आउटपुट्स हैंड ओवर कर देता है टू एक्स फॉयल विच इज अ मोर एक्यूरेट मॉडल बट इसका कंप्यूटेशनल टाइम ज्यादा। तो इट इज इंटेलिजेंट इनफ कि इसने किस स्टेज पे ये ट्रांजिशन करनी है टू एक्स फॉयल। और इसीलिए अगर अगर इसमें ये फिजिक्स इंड्यूस्ड मॉडल ना होता और ये सिर्फ डीप लर्निंग बेस्ड होता तो फिर इसमें ये फीचर ना होता टू हैंड ओवर। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि आप एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं और आपका जो है ना स्मूथ फ्लो है जिसमें आप एक कमर्शियल एयरलाइनर को फ्लाई करें, तो आपको पायलट डज नॉट फेस, आप ऑटो पायलट पे जहाज को हैंड ओवर करें। अब जहाँ पे आपका फर्स्ट करें कि थंडरस्टॉर्म आ गया या गस्टी विंड आ गया, तो आप पायलट जो है वो ऑटो पायलट का मैनुअल ओवरराइड करके उसको कंट्रोल ले लेगा, यानी कि जो आपका एक एनालिटिकल मॉडल है टेक ओवर करता है एक खास पॉइंट के ऊपर जहाँ पे डीप न्यूरल नेटवर्क फेल हो जाए। तो इसकी एक लेमैन एग्जांपल है कि इसकी ट्रांजिशन होती है फ्रॉम न्यूरल फॉल टू एक्स फॉल, बट सबसोनिक रिजीम इट इज क्वाइट एफिशिएंट। इस रिसर्च पेपर में उसने ये प्रूव किया है, और जो मैं आपको इसके आगे रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा जो हमने इसका रन किया, कि न्यूरल फॉल के रिजल्ट्स एक्स फॉल के साथ ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं विद वेरी स्लाइट माइनर वेरिएशन लिफ्ट कोफिशिएंट में और ड्रैग कोफिशिएंट में। तो अगर ट्रेड ऑफ देखें तो वो ये कहते हैं कि इसके रिजल्ट्स आर एज गुड एज एरोफॉल डिजाइन बाय एनी एक्सपर्ट। तो आप इनिशियल जो अपनी इनिशियल आप प्रिलिमिनरी फेज ऑफ डिजाइन में आप न्यूरल फॉइल को यूज कर लें, और जब आपको ये खास स्टेज पे ले आए तो आप जो मोर एक्यूरेट डिजाइन जो है फिर आप एक्स फॉइल से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूरल फॉइल इज अ गुड टूल। सो नाउ आई कैन स्विच ओवर टू माय प्रेजेंटेशन। अच्छा, राइट कॉर्नर। अच्छा, प्रेजेंटेशन। This one is put here. Thank you. Share the reading. Main share. So thank you. ये सर प्रेजेंटेशन नैपकिन में बनी हुई। इसका फिजिक्स एंड फॉर्म मशीन लर्निंग टूल डीप न्यूरल नेटवर्क प्रेडिक्ट्स द एरोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयरफॉइल्स जो आपके इसको इनपुट में देते हैं। वो एयरफॉइल्स आप इसको फीड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, इट ट्रांसफॉर्म दोस एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स in the form of 18 mathematical calculations on the upper and lower surface, and later on the results are given. इसका सर जो एनवायरनमेंट है मैंने गूगल के कोलैब यूज किया सर,
मैंने इसका जो रिप्रोड्यूसिबल कोड है वो गूगल कोलैब में लेके आया। देयर वर फ्यू डिफिकल्टीज। एरोफॉइल जो उसके डेटा सेट्स पे थी वो ये पिक नहीं कर रहा। वो फिर सर मल्टीपल इटरेशन पे जाके तो फिर उसने काफी मुश्किल से वो मैंने उसको अपनी डिफिकल्टीज में हाईलाइट किया है कि उसका देयर शुड बी सम बेटर वे फॉरवर्ड एंड इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट माय एम इज टू रिजॉल्व दिस इशू। ऑलरेडी सर इसमें नाम का है टॉर्च बैक प्लॉटेड और टेंडर्स का सर इसमें हमने इंस्टॉल किया सर। सर जो मैंने दो एरोफॉइल्स इसमें एज ए टेस्ट केस नाका 2412 और नाका 0012 इसको फीड की और उसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए रेनॉल्ड नंबर्स, मार्क नंबर्स और एंगल ऑफ अटैक्स। अच्छा इसका सर इसका एक फंक्शन है ऑप्टिमाइजर का। जब ये इनिशियली आप कोड को रन करते हैं और ये उसकी लिफ्ट कोएफिशिएंट और ड्रैग कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर आप इसमें इंपोर्ट इसके अंदर ऑप्टिमाइजर नहीं है, आप इसमें एक इंपोर्ट करते हैं फंक्शन ऑप्टिमाइजर का जिस which calculates best lift to drag ratio and identifies the angle of attack which gives the best lift to drag ratio. So that's why it's an optimizer function जो कि फिर आपको डिजाइन में हेल्प करता है to select the best aerofoil. It is effective for slow moving aircrafts. Up till transonic regime जाता है, subsonic regime में आप aerofoils डिजाइन कर सकते हैं। सर जो मैंने इसका वो भी रन किया उसमें जो मुझे इसका एवरेज टाइम पर एवैल्यूएशन मिला दैट इज 7 मिलीसेकंड्स और व्हिच इज 200 टाइम्स फास्टर देन द एक्स फॉइल में। अगर आप यही इटरेशन रन करें तो वो इससे 200 टाइम्स फास्टर है, स्लो है सॉरी, इट इज 200 टाइम्स फास्टर बट एक्यूरेसी में इट इज फेयरली एक्यूरेट, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है एक्स फॉइल। इसकी जो सर स्टेजेस हैं 5 स्टेजेस हैं। प्री सॉल्व में आप रॉ एयरफॉइल शेप इसको फीड करते हैं, ये उसको मैथमेटिकल करेक्ट 18 कैरेक्टरिस्टिक्स में ट्रांसफॉर्म करता है। एंड कोडिंग में सर वो उसको इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करके तो लर्नेड जो मॉडल है उसको फीड कर देता है सर। और डिकोडिंग में आपको आउटपुट अवेलेबल हो जाती है। और फ्यूजन और एक्सट्रापोलेशन ये है सर कि जिस जब ये डिट्रैक होने लगता है, जब ये ट्रांसफॉर्मिक रेजिम की तरफ जाता है तो ये एक्स्ट्रा ये यूज कर लेते हैं अपने आप को विद एक्स फॉयल और एक्स फॉयल वहां से टेक ओवर कर लेते हैं और इसको एक्यूरेट रीडिंग्स प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिक रेजिम। और ट्रांसफॉर्मिक रेजिम में ये इफेक्टिव नहीं है। चैलेंजेस सब मैंने आपको बताया कि डाटा लोडिंग जब आप इसको एयरफॉइल्स फीड करते हैं तो नहीं फीड होती, उसमें मल्टीपल इटरेशन में जाना पड़ता है। इसमें एक फीचर है सर CST कंप्यूटेशनल शेप ट्रांसफॉर्मेशन। वो लेटर ऑन आई केम टू नो कि वो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को इतना रेडीली नहीं एब्जॉर्ब करता है जितना ये कंप्यूटेशनल शेप ट्रांसफॉर्मेशन। एक आप फंक्शन इंपोर्ट करते हैं जिसमें ये इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को मैथमेटिकल पैरामीटर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। वो इसमें बिल्ट इन नहीं था, वो ट्रांसफॉर्म वो इंपोर्ट करना पड़ा सर CST का जो फीचर है। सर एक्चुअली ये वो रिजल्ट्स हैं जो एक्चुअली मैंने प्रिलिमिनरी राउंड्स में अटेन किए हैं। अभी जो बेस्ट हिट की ड्रैग रेशियो मुझे मिली है डाटा ऑफ 2412 की 9.58 मिली है एट एंगल ऑफ अटैक 2। यानी कि फॉर एकेडमिक पर्पस आप एक विंग डिजाइन कर रहे हैं उसमें मुझे जो है बेस्ट हेल्प की रेशियो मिलनी चाहिए थी वो न्यूरल फॉइल ने मुझे कैलकुलेट करके दी जो बेस्ट एंगल ऑफ अटैक थी। अच्छा इस न्यूरल फॉर्म में सर एक फीचर है कि ये अपना ट्रस्ट वर्दीनेस और कॉन्फिडेंस लेवल बताता है, ये खुद बताता है कि मेरा ये कैलकुलेट करोगे। इसका जो डेमोन्स्ट्रेटेड कॉन्फिडेंस लेवल है इट इज 8 × 10⁻⁸ which depicts कि जो इसका जो मीन स्क्वायर एरर है इट इज एज नेग्लिजिबल एज 0 when compared with the target values। और जो टारगेट वैल्यूज है सर वो वैल्यूज हैं जो एक्स फॉइल ने कैलकुलेट की which is a accurate version of this tool। अब एम ये है सर क्या टुवर्ड्स द एंड कि अब ये तो इन एरोफॉइल्स को फाइन ट्यून नहीं कहना चाहिए, इन एरोफॉइल्स की ट्रेनिंग डाटा सेट की तो इसलिए अच्छा परफॉर्म किए थे। माय नेक्स्ट टारगेट वुड बी सर कि मैं इसको एरोफॉइल्स फीड कर दूं जो कि अदर देन द डाटा सेट हो और उस पर फिर हम इसका कैलकुलेट करें कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है और is it able to calculate the best lift to drag ratio and also identify the best angle of attack।
तो अब आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द वेज कि वो मुझे कहाँ से एयरोफॉइल्स मिलेगी, क्या मुझे डिजाइन करनी पड़ेगी। आई एम जस्ट फिगरिंग इट आउट। तो ये है सिलसिला। सर जस्ट आपको जस्ट टू शो, मैं वो जो ग्राफ्स हैं जो एक्चुअली इसके इस रिजल्ट से मिले हैं, ये वहां से सर जाएगा। जब क्विकली मैं वो मेरा पेपर था उसी को खोल लेता हूँ, उसमें सर इनमें से which one? This one or this ये सेकंड माइलस्टोन सर, ये वाला। one? यस सर, थैंक यू सर, बस सर ये जस्ट आई विल टेक। ये एक्चुअली जैसे कोड रन किया तो नाका 2412 के ऊपर जो लिफ्ट कोफिशिएंट वर्सेस एंगल ऑफ अटैक का ये आया सर। जैसे जैसे एंगल ऑफ अटैक बढ़ रहा है सर, लिफ्ट, वो सॉरी। आपको बंद। सॉरी, बस थैंक यू सर, बस सर टेक जस्ट। ये कोड रन करने के बाद जो आउटपुट पे जो एरोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसने कैलकुलेट की हैं, ये उसके ग्राफ्स हैं, प्लॉट्स हैं। अभी जैसे इसने एरोफॉइल के लिए जो लिफ्ट कोफिशिएंट है वर्सेस एंगल ऑफ अटैक का ये आ रहा है आपका रिलेशनशिप, फिर ये ड्रैग कोफिशिएंट वर्सेस एंगल ऑफ अटैक का आ रहा है, और वो जो एक ऑप्टिमाइजर का फंक्शन था ना, वो उसका आउटपुट ये नीचे आ रहा है। ये देखें सर, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब इसमें ऑप्टिमाइजर का फंक्शन इसमें अप्लाई किया तो एट एंगल ऑफ अटैक 2 इसने बेस्ट लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो यहाँ पे आपको दिया है। तो यहाँ दैट्स इट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा सर, सर फवाद, ये आम तो बहुत आउट क्लास, एक सिर्फ इसमें एक चीज जो आपने देखनी ना, ये जो आपने जो डॉक्यूमेंट दिखाई ना, प्रोबेबली ये इस टूल बॉक्स की इंफॉर्मेशन गाइड है। इट इज नॉट अ रिसर्च पेपर। सो थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव से आप एक्सप्लोर कर लें कि इसका कोई यूजेज कहीं किसी ने किसी रिसर्च पेपर में किया होगा। देखिएगा इस पर्सपेक्टिव से, इसमें इट्स अ सॉर्ट ऑफ वाइट पेपर। जब कोई बंदा कोई चीज़ बनाता है ना, तो वो अपने काम के बारे में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखता है कि जी मैं ये इस तरह से मैंने सारा काम किया और मेरी परफॉर्मेंस इस तरह से आ रही है। तो आई फील के दिस डॉक्यूमेंट इज दैट डॉक्यूमेंट। इट इज बाय द ऑथर हिमसेल्फ एंड ही इज बाय द ऑथर हिमसेल्फ एंड ही इज इंट्रोड्यूस हिज टूल। आई हैव मेड अ टूल। जो रिसर्च पेपर्स होते हैं ना सर, उसमें थोड़ा सा आप सब लोगों ने शायद अभी रिसर्च मेथड का सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा। तो रिसर्च पेपर का थोड़ा सा ना डायरेक्शन डिफरेंट होती है। दो कैटेगरीज ऑफ रिसर्च पेपर्स होते हैं, एक कॉन्फ्रेंस पेपर्स होते हैं या जर्नल पेपर्स होते हैं। सो कॉन्फ्रेंस पेपर्स का मतलब है कि कॉन्फ्रेंसेस में पब्लिश होते हैं। जर्नल पेपर्स जर्नल्स में पब्लिश होते हैं। इनके क्वालिटी क्राइटेरिया भी दुनिया ने डिफाइन किए हुए हैं, जिसमें इंडेक्सेशन एजेंसीज हैं, एक वेब ऑफ साइंस है, नाम ध्यान में रखें, जब आप पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एल्सवेयर है, एल्सवेयर का एक इंडेक्सेशन एजेंसी है स्कोपस के नाम से। सो जो कॉन्फ्रेंसेस और जर्नल्स इंडेक्स्ड होते हैं स्कोपस में, वेब ऑफ साइंस में, दोज आर कंसिडर्ड एज हाई क्वालिटी जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। And people who submit in those places, their paper is passed through a review process. उनको एक एसोसिएट एडिटर असाइन होता है, फिर उसके बाद रिव्यूअर्स असाइन होते हैं, उनके रिजल्ट्स आते हैं, और एक पीयर रिव्यू के बाद, जो कि ब्लाइंड रिव्यू भी हो सकता है, डबल ब्लाइंड रिव्यू भी हो सकता है, फिर वो पेपर एक्सेप्ट होता है और पब्लिश होता है उस कॉन्फ्रेंस में या जर्नल में, जिसकी डिस्क्रिप्शन उस पेपर के अंदर कहीं लिखी होती है कि दिस पेपर इज पब्लिश्ड इन फला फला जर्नल या कॉन्फ्रेंस।
सो जब भी आपको रिसर्च पेपर शॉर्टलिस्ट करें तो देखें कि वो किस कॉन्फ्रेंस का पेपर है या किस जर्नल का पेपर है, राइट। ब्रॉडली कॉन्फ्रेंस जो होती है वो एक एक इवेंट होता है दुनिया में किसी भी शहर में, मुल्क में, जहां लोगों को बुला के और वो अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं। और उसका मेन एम जो कॉन्फ्रेंसिस का है वो बहुत हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर्स नहीं है। उसका मेन एम है टू गैदर पीपल where you can make PRs, make your future connections and then do some mutual research projects। ये कॉन्फ्रेंसेस का टारगेट होता है। ऑन दी कंट्रेरी जो जर्नल्स हैं, जर्नल्स का पर्पस ये है कि आप हर वो चीज जो कि पीरियोडिकली पब्लिश हो रही है, 1 महीने के बाद उसका एडिशन आ रहा है, 2 महीने के बाद एडिशन आ रहा है, 6 महीने के बाद एडिशन आ रहा है, साल के बाद एडिशन आ रहा है, डेली एडिशन आ रहा है, जो इस डेफिनेशन पे पब्लिकेशन फोरम पूरा उतर रहा है उसको हम जर्नल कहते हैं, बिकॉज इट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ लाइब्रेरी वेयर यू प्लेस वॉल्यूम्स एंड इश्यूज इन रैक्स। तो जो लाइब्रेरी की इंडेक्सेशंस होती हैं वो जर्नल्स उस पर्सपेक्टिव पे काम करते हैं, राइट। सो जर्नल्स जो है उनमें मेन एम या प्राइमरी पर्पस होता है गुड क्वालिटी कंटेंट, टेक्निकल कंटेंट पे फोकस करते हैं। प्रोसेस वही है रिव्यू का, लेकिन उसमें चूंकि कोई ऐसा किसी फोरम पे आपने प्रेजेंट नहीं करना, दे जस्ट रिव्यू योर वर्क एंड देन इट विल बी एक्सेप्टेड एंड पब्लिश्ड। But journals means all those places where periodic publications are being done. Issues are coming up every month, every 2 month, every 3 month. So again, it's a learning in the process। आगे भी आप जाएंगे तो आपको फर्दर भी और भी क्लैरिटी आएगी। तो हमेशा रिसर्च पेपर्स को जरा इस पर्सपेक्टिव से आपने देखना है। तो ये सर बस सिर्फ आपने इसमें ये देख लेना है। अब होता ही है ना कि सर मैंने एक काम किया, आई मेड समथिंग एंड आई मेक इट्स operator manual, I'll make its maintenance manual, which probably not been reviewed anywhere। I just do it because मैंने वो किया है काम, तो मैं उसको PDF फॉर्म में I can place it at any other place and people can download it and then see it। Saying this, ये it doesn't say कि वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, but it has not been reviewed। So if it has not been reviewed, it means third party has not verified it। It is only my own work कि मैंने वो किया और मैंने उसको लोगों से कहा है कि इसको देखें आप, ठीक है। सो दिस इज ओके। ये बिकॉज आई फील के द टूल इज वेरी गुड और ये इस पे आपका जो होमवर्क है वो बहुत अच्छा है। आपने सिर्फ एक चीज जो इसमें भी मिसिंग है वो है कि ट्राई टू फिगर आउट अ रिलेटेड रिसर्च पेपर विच हैज मेड यूज ऑफ दिस टूल एंड देन वेरीफाइड सम रिजल्ट्स। बस इस चीज को जरा आपने ये मिसिंग लिंक को देख लेना। बाकी आप ठीक, डायरेक्शन ठीक है आपकी। it's something which is to be done, which can be done with a AI based approach and they have done it, they have demonstrated and things are okay and you are learning from it कि वो कैसे हुआ हुआ है, तो that is a good thing। Okay sir, तो let me invite Hamza। ये सर आप इसको देखिए और मैं आपको भी ये पर्टिकुलरली से जुए भी इसके regime है, प्रोफाइल डिजाइन की बहुत useful for flow। ऐसी है सर। आजकल तो चूंकि टूल्स की मदद से बहुत सारे काम हो रहे हैं और आपका टाइम जो है वो बचता है प्राइमरली। तो अभी जिस तरह से रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी यूएवीज और इनकी अभी आजकल है काफ़ी, तो उसमें इनको इफेक्टिवली अगर यूटिलाइज किया जाए, लेकिन पहले बंदे को खुद पता हो कि क्या काम कर रहे हैं। यू आर नाउ एक्सप्लोरिंग इट एंड यू आर नाउ ट्राइंग टू एटलीस्ट आपका जो एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बन गया है कि कैसे ये काम हो रहा है। सो अगर ये चीज पता हो तो देन यू कैन मेक यूज ऑफ द थिंग्स इन अ बेटर वे। इफ यू डू नॉट नो एज अ ब्लैक बॉक्स, प्रोबेबली आप उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते या आपको समझ नहीं होगी कि मैं ये कर क्या रहा है। तो वो चीज जो है यहाँ एक शायद इम्पोर्टेंट है कि उसको देखना चाहिए। तो होपफुली इट वुड फर्दर इम्प्रूव एज फार एज योर अंडरस्टैंडिंग इज देयर। ठीक है जी, यही आपकी प्रेजेंटेशन। Sir, my topic is based on mobile robotics, AgroNet, autonomous navigation framework for agriculture, robotics and vehicles using semantic segmentation and semantic time detection. This paper is published in CVPR, a very good reputed conference. So first of all, what is semantic segmentation? Semantic segmentation is basically
clustering of image into different objects and form their class. It is performed pixel level at pixel level according to the category. If you can see, they are classifying cars and the colors. They are giving blue to the cars and red to the people. So they are basically making classes of different things in the image or video. Problem statement, some of the countries like South Korea and Italy, they are facing labor shortage, So basically they are trying new methods to find the replacements, and they are trying to make a robot which can navigate by its own using a single camera. Because traditional methods, if you talk about pure robotics and self-driving vehicles, they use a lot of sensors, but they are very expensive. So their aim is to use only a camera and make the robot navigate the field, agriculture field efficiently. So they are proposing IGNONAV framework, which is an pipeline for extracting center line from field images. They have made their own dataset, and in the field they first make boundaries and they then find a center line. So the robot should follow that center line. It is suitable for both ground and aerial robots. So this is the framework. First we give input image, then we perform semantic segmentation. See the color difference here. They have made the class of objects in the image. They have made a class of the crops and the soil. And then they are forming semantic lines between the two crop lines. After that, they are generating a center line, and the robot must follow this center line. Dataset, they've used their own dataset. First, they have used a dataset, a pre-made dataset, and they have modified their own dataset according to the cityscapes. For example, they have in cityscape that is urban dataset, that is not agriculture based. So they have annotated their own dataset according to the cityscape. They have classified the roads in cityscape dataset to their own dataset, like the field, ground, sand, dust, or whatever. They have changed the labels accordingly. Or the platform they have used is very easily and entered 120 finally images. They have trained on doing 120 images, and rest they have tested. So these are some of their results. Precision, recall, F-Meyer, and we probably sir explained to us the precision, recall, and F-score in the last lecture. No, we have not yet done this. Sir, precision का हमें थोड़ा सा formula अभी इसको करना है, ठीक है, लेकिन आगे चले हम. for future work they will deploy their own. This is currently on a data set. This is not on a robot. In future, their aim is to deploy, because in real time the results are not exactly what we try to simulate. And this is currently they have not added weed segmentation. So in the future they will improve the data set so that it can also segment the weeds, because in the field we have weeds also, like not just crop. So that's it. So ठीक है, इसके डाटा सेट्स की एक्सेस मिल गई थी आपको? data set है, और गिटहब पे कोड भी अवेलेबल है? बस ठीक है, दैट्स गुड, सही है, एरिया ठीक है. और ये आपका जो आप अपना जो थीसिस करना चाह रहे हो उसमें इसका कोई, अच्छा ठीक, ओके. उधर ये यूज हो सकता है क्योंकि अगर आपके पास ड्राइविंग सीक्वेंस है तो आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं. This is the person, this is the zebra crossing, ठीक. type of segmentation. Self driving car basically segmentation का वो होगा तो वो ठीक ठीक, चलें, दैट्स ग्रेट. ओके, आई थिंक अब्दुल्ला 548 इनका नंबर आप ही.
Next is Ehsan Khan. Thank you. Paper selected is supervised anomaly detection for complex industrial images. ये एक सर वैल्यू कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है ऑटोमोबाइल की, उसकी एक जो है ये में एक डेटा सेट और दो काम सर पेपर में हुए, एक डेटा सेट इन्होंने मेंटेन किया है और सेकेंडली एक इन्होंने कोड सेगमेंटेशन एनोमली डिटेक्शन का एक यूनिक कोड बीच में इंट्रोड्यूस करवाया है, जिससे सेगमेंटेशन बेस्ड एनोमली डिटेक्शन होती है इंस्टेड ऑफ पिक्सल वाइज एनोमली डिटेक्शन। ये कॉन्फ्रेंस पेपर है सर IEEE का PDF के से स्पॉन्सर्ड है सर। अच्छा, इसमें एक चीज और भी आप सबको क्लियर करो, जो IEEE का नाम है ना सर, इसको थोड़ा सा कॉशियसली यूज करना होता है। IEEE इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट अ कॉन्फ्रेंस और इट्स नॉट अ नेम ऑफ अ जर्नल, इट इज जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। IEEE is Institute for Electrical Electronics Engineers and they conduct lot of things. ये म्यूजिक इवनिंग्स भी कराते हैं, ठीक है। तो ये पेपर्स भी जर्नल भी पब्लिश करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी कराते हैं, इनकी फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंसेस अलग होती हैं, इनके बहुत सारे सोशल इवेंट्स भी होते हैं। ये फ्यूचरिस्टिक रिसर्च के पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारे फंक्शंस कराते हैं और करंट रिसर्च एरियाज में भी काम करते हैं। बट IEEE इज नॉट अ कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ, इट इज जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। यस, इनका बैनर है। अब इफ एनी कॉन्फ्रेंस लाइक CVF जो है, ये CVF जो है ये इसका मुझे कंप्लीट वो नहीं पता, बट सॉरी, कंप्यूटर विजन एंड फाउंडेशन, तो ये एक कॉन्फ्रेंस है जो कि कोई एक सेटअप करवा रहा होगा और उन्होंने IEEE को अप्रोच करके इनका बैनर लिया है कि हम आपका बैनर यूज करना चाहते हैं, ठीक है। लाइक आई कैन डिसाइड टू कंडक्ट अ कॉन्फ्रेंस इन कॉलेज, या यहाँ पे होती है, वी गो टू द इस्लामाबाद चैप्टर के जी मैंने कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटी में करानी है, मुझे आप अपना क्वालिटी मैट्रिक्स दें। तो वो मुझे एक फॉर्म देते हैं जी, ये बताएं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, फंडिंग कितनी है, लोग कितने हैं, पीयर रिव्यू होगा नहीं होगा, कहाँ पे कराएंगे, कितने कमरे हैं, कितने लोग आएंगे। तो वो कुछ बेंचमार्क सेट करते हैं। जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो कहते हैं ठीक है मेरा नाम इस्तेमाल कर लें, इतने पेमेंट भी कर दें मुझे, आपसे 1.5 लाख रुपए पे करें और मेरा नाम इस्तेमाल करें। So by making name of by bringing that name in a conference, the conference itself becomes a little prestigious. कि a bigger name is giving his name or its name to the conference, ठीक है। तो ये सब के लिए बड़ा ये कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं जी, IEEE कॉन्फ्रेंस है, ये IEEE का पेपर है। IEEE का कोई पेपर नहीं होता। IEEE just giving its name to any conference, which is in this case is CVF, and CVF can be conducted, can be carried out by any organization. It would be a yearly event. आई कैन गो एंड टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि जी इस साल की CVF कॉन्फ्रेंस जो IEEE के बैनर के नीचे हो रही है वो मुझे पाकिस्तान में कराने दी। वो मुझसे कुछ चीजें पूछेंगे और मुझे ऑप्शन दे देंगे। इसलिए आप देखते हैं कि एक ही कॉन्फ्रेंस, नाम एक ही होता है, दुनिया में हर साल डिफरेंट जगहों पे होता है, ठीक है। तो ये जरा सबके जहन में हो, जस्ट क्लैरिटी के आपको भी ये चीज आइंदा के लिए रखें। तो IEEE CVF है, ये पूरा नाम ये है सर, ठीक है जी। गुड गुड कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस काफी प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस है, ठीक। Paper details are there. Here. Links to code and data set. The links are shown here. The data set is forward to give the picture of the data. There are almost 5,000 images of the piezoelectric soldering thing. There are two solders and one piezoelectric जिसके ऊपर उन्होंने सारा anomaly detection की हुई है। इनिशियल फेज में मैंने जो किया था, मैंने इन्हीं का डाटा सेट डाउनलोड किया जो मैं अपने साथ के ड्राइव्स के ऊपर यहाँ पर दिया होगा, वो डाटा सेट डाउनलोड करके और कोड डाउनलोड करके, बट डिफिकल्टी एनकाउंटर करना होता है कि वो कोड है वो कोड इसके साथ अलाइन भी नहीं होता इस डाटा सेट। तो आई हैव टू अगेन गो बैक और फिर मैंने एक और डाटा सेट जो मीजर डाटा सेट है जो 2022 में बनाया गया था, उसको यूज करते हुए कोड को रन किया। Now, at present where I am standing now, सबसे पहले तो फ्रेमवर्क जो इसका है सेगमेंटेशन की पाइपलाइन, ये 3 स्टेप्स में काम करती है। एक सबसे पहले इसमें एक एनोमली मैप जनरेट किया जाता है, एनोमली मैप जनरेशन, उसके बाद उसकी सेगमेंटेशन की जाती है और इनसे एक फीचर
बना के ये एट्रीब्यूट्स के अंदर जो रैंडम फॉरेस्ट बूस्टेड रैंडम फॉरेस्ट है उसको क्लासिफिकेशन में दिए कि फिर इससे क्लासिफाई किया जाता है कि आइदर इट इज अ गुड पार्ट और अ बैड पार्ट, नॉर्मली उससे डिटेक्ट की जाती है। फॉर द टाइम बीइंग जो वो इसका पेपर के अंदर जितनी चीजें लिखी हुई हैं, इट वाज अ डिफिकल्ट पेपर एंड न्यू टू मी, तो मैं अभी तक इसको ऑलमोस्ट 70% इसको कंज्यूम कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे भी अभी तक ये 100% नहीं समझ आया। उसके बाद डेटा सेट की प्रिपरेशन है। जैसे मैंने बताया कि जो डेटा सेट था वो जो बीएडी डेटा सेट था उसके साथ अलाइंड ही कोड नहीं था। फिर मैंने वीजा डेटा सेट को लेके जो ऑलरेडी उसके साथ अलाइंड था उसको कोड को रन करने की कोशिश की। उसके अंदर जो सेगमेंटेशन और इकोनॉमिक मैप जनरेशन के मॉडल्स यूज हुए थे वो कुछ 4 तरह के मॉडल्स थे। एफिशिएंट एडी था, RD4 एडी था, और एक पैच फ्लो और फास्ट फ्लो पे पैच फ्लो और फास्ट फ्लो के नाम से था। लेकिन जो मैं 2 रन कर सका वो सिर्फ मैं एफिशिएंट एडी और RD4 एडी को मैं रन कर सकूँ, बाकी कोड मेरा उसके साथ अलाइन नहीं हो सका, उनको मैं नहीं कर सका। लेकिन इन दोनों के साथ मैंने अभी तक के लिए रिजल्ट्स उसमें से निकाले। एनवायरनमेंट मैंने ये सारी चीजें गूगल कोलैब के अंदर की है। जैसे बताया कि जो डाटा है उसके गूगल पाथ का एरर आ रहा था, जब डाटा को डाउनलोड कर दिया उसके बाद गूगल कोलैब से उसको रन करने की वो रन ही नहीं होता, वो उसको कहता है कि ये मुझे पाथ पे विजिबल नहीं, तो उसके बाद वापस उसको अपलोड करना पड़ता है और फिर उसको रन करना। सेकेंडली कोड की मॉडिफिकेशन की है। कोड की मॉडिफिकेशन आई वाज अनएबल टू डू इट माय सेल्फ, तो मैंने गूगल जेमिनी की और थोड़ी सी क्लॉड की हेल्प लेके मैंने उसके अंदर कुछ चीजें इम्प्रूव की हैं, जिसके जैसे कि जो भी उसके अंदर चीज चल रही है उसके साथ उसकी मुझे लिख के दें कि ये क्या काम कर रहा है, तो वो उसके साथ साथ उसने ग्रीन कलर में लिखता गया साथ साथ कि मैंने ये काम किया, ताकि मुझे पता चलता है कि क्या चीज नहीं चल रही। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ डायरेक्टरीज वहां पे विजिबल नहीं थी और उसने उसको स्किप करना शुरू कर दिया, तो स्किप करना गया तो रिजल्ट्स नहीं आते थे, तो उसको मैंने बताया तो उसने वॉल का एक मुझे बना के दे दिया कि वॉल और इसके आगे जो है वो पाथ नहीं है। पाथ को मैन्युअली जाके उस फोल्डर के अंदर डाला गया और फिर उसके बाद उसने रन किया उसके साथ। ये डिबगिंग स्टेटमेंट्स डालनी है इसके अंदर, फ्लैटनिंग की कमांड्स डालनी है इसके अंदर, ताकि ये चल सके, क्योंकि जहाँ पे पहले रन हुआ होगा वहां पे शायद एक सॉफ्टवेयर के थ्रू लैब में ये चीज नहीं रन हो रही थी, क्योंकि फ्लैटर का एक पूरा एक सेक्शन एक कोड के अंदर इंक्लूड किया गया। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करती है, ये इसके हाइपर पैरामीटर है, इनको अभी तक मैंने छेड़ा नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश की है कि ये क्या चीज़ है। एस्टिमेटर और लर्निंग रेट इसका 0.05 है और डेप्थ इसकी 6 पे रख के, और हमारे पास इसके एक रिजल्ट हमारे पास इसके अंदर आ गए। Coming over to the difficulties encountered, ये फर्स्ट इज द डेटा सेट और कोड की अलाइनमेंट क्योंकि नहीं हो रही थी, ये ऑलरेडी डिस्कस किया मैंने काफी ज्यादा। और एक चीज शायद बाकी सबको पता हो लेकिन मेरे लिए न्यू थी कि पहले डेटा सेट को अपलोड कर दिया मैंने ड्राइव के अंदर, फिर ड्राइव से जब मैंने पाइथन को कहा कि आप इसको एक्सेस करें तो उसने उसको अनजिप करना है, एंड इट टुक मी अराउंड 6 आवर्स कि मैं वो अनजिप होता रहा। फिर लेकिन अनजिप होने के बाद भी उसकी डायरेक्टरी बनाई वो उसको विजिबल नहीं थी। फिर उसके बाद दोबारा उसको कंप्यूटर में अनजिप करने के बाद फिर दोबारा अपलोड किया, तो ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स कंज्यूम हो गए। कोड पाथ के इश्यूज थे, रूट्स डायरेक्टरीज नहीं बनी हुई थी, कोड के अंदर नहीं बनी हुई थी, कोड को दोबारा से रीराइट करना पड़ा फिर कहीं जाके थी। मॉडल और लाइब्रेरी के प्रॉब्लम्स थे कि जो ऑलरेडी कोड के अंदर तो नहीं उससे रन हो रहे थे, उसमें भी मैंने बताया मैंने कुछ NLP की मदद लेके और फिर उसको कोड को मॉडिफाई किया, फिर ये चीजें रन हुई। टोटल 10,000 images थे, बट आई कैन at this moment for 2,545 images को हम उसकी from reduction को उसको रन कर सकते। Coming over to the results, इस पे 5 तरह के रिजल्ट्स इसके अंदर आने थे, जो कि 2 ये मॉडल्स थे और 2 मॉडल्स इसके अलावा हैं जो है पैच कोड और फास्ट कोड। फिर इन चारों को कंबाइन करके एक नॉन एडी का कोड है जो इसी के अंदर कोड मौजूद है वो किया हुआ है, लेकिन मैं अभी तक सिर्फ इन दोनों को रन कर सकता हूँ, बाकी अभी नहीं रन। जो पहला कोड है उसका रिजल्ट सिमिलर है जो हमारे पास पेपर में दिया हुआ है, लेकिन सेकंड का सिमिलर नहीं है, उसकी काफी कम परसेंटेज आ रही है। रीजन इसके उसके जो कुछ फोल्डर हैं वो उसके पूरे में इस वजह से
काम आ रही है, फोल्डर को दोबारा अलाइन किया जाएगा तो फिर ये पोस्ट होगी। In the final phase, refinement, alignment of current code, model enhancement कर सकते हैं इसकी integrated with alternative classifiers। अभी ये random random forest में हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ किया जा सकता है। डाटा सेट एक्सपेंशन की जा सकती है। कोशिश यही होगी कि BAT सेट डाटा सेट जिसके लिए कोड बना हुआ है उसी को इसके साथ रन किया जाए और साथ चलाया जाए। हाई शॉट, लो शॉट, अगर ये सारी चीज पूरी हो जाती है तो फिर इन द एंड इसको भी कोशिश की जाएगी इसके साथ भी एक phenomenal डिटेक्शन के साथ रिजल्ट्स इसके निकाले। एक स्लाइड्स पे बहुत ज्यादा टेक्स्ट रखा हुआ है, उसको जरा आपने ये करना है। आई थिंक आपने असिस्टेंस ली है किसी टूल से, तो वो आप पेस्ट कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा ट्रक्स रखा करो बस स्लाइड के ऊपर। ठीक, बाकी ठीक है। आपने रिसर्च पेपर भी आपका ठीक है, आपने डाटा सेट की एक्सेस भी आपको हो गई है, इम्प्लीमेंटेशन की पाइपलाइन भी आपको क्लियर है। तो होपफुली जो कुछ चीज़ें जो कि विद द टाइम जो है और फर्दर क्लियर हो जाएंगी। सर ठीक है, गुड, थैंक यू। एहसन। My name is Yasin Khan, and the topic of discussion is नेक्स्ट इज रिजवान। machine learning for predictive maintenance of CNC machines using vibration data. Actually, machine shop में जब भी सुपरवाइजर ने कोई भी काम किया जाता है तो उसमें इशू सबसे ज्यादा ये आता है कि बैकग्राउंड वजह से आपकी जो स्केड्यूल है वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है और आप कमिटमेंट्स में वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसके लिए मैं क्योंकि जो मैनुअली हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कर रहे हैं वहाँ पे वो उतनी फिजिबल नहीं है या उतना उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आ रहे कि जितने हम AI मॉडल को यूज करके किया जा सकते हैं। तो उसके लिए मैं AI मॉडल को यूज करने की कोशिश करता हूँ। रिसर्च टॉप जो मैंने रिसर्च पेपर ली है उसका AI बेस्ड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस फॉर मशीन वाइब्रेशंस एंड कंडीशन मॉनिटरिंग इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ये एक्चुअली मशीन की वाइब्रेशन से डेटा कलेक्ट करेगा कि अगर नॉर्मल वाइब्रेशन है उसकी साउंड नॉर्मल है उसके मुताबिक उसे हेल्दी शो करेगा, और अगर उसकी साउंड में वेरिएशन है और मिसअलाइनमेंट की वजह से या बेयरिंग की साउंड की वजह से उसमें वाइब्रेशन ज्यादा क्रिएट हो रही है तो वो उसमें अनहेल्दी या फॉल्टी डिक्लेयर करेगा। इससे हम टाइमली उसे मेंटेनेंस करके जो हमारे स्केड्यूल में या कमिटमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते उससे। और उसका कोड लिंक जो मुझे गिटहब पे मिला है उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है, जो हमारे पास उसने CSV का लिंक दिया वो रन नहीं हो रहा था, तो उसके लिए मैंने फिर केगल का कोड लिंक जो है ना वो किया, वो रन हो रहा है। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस डिटेक्टिंग फॉल्ट्स बिफोर फेलियर, कि आप फेलियर से पहले ही उसे डिटेक्ट कर लें और उसे ठीक कर लें बजाय इसके कि वो एंड टाइम तक ब्रेक डाउन हो और उसके बाद उसे काफी टाइम लगे। जो ट्रेडिशनल मेंटेनेंस होती है वो ज्यादा अनप्लान्ड होती है और डाउन टाइम की वजह से आपकी इक्विपमेंट्स डिस्टर्ब होती है। मशीन लर्निंग यूजेस वाइब्रेशन डेटा टू प्रेडिक्ट फॉल्ट अर्ली। मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम को यूज करके हम इसे अर्ली उसके फॉल्ट्स जो डिटेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली कोई भी काम आप जब करते हैं तो उसका एक प्रॉब्लम होता है जिसको आप सॉल्व करके रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि जो CNC फॉल्ट्स आते हैं वो हमें पहले पता नहीं चलता, जब वो फॉल्ट्स आ जाते हैं उसके बाद हमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, ब्रेक डाउन टाइम ज़्यादा होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम वाइब्रेशन सिग्नल को मॉनिटर करेंगे मशीन की और उसी पे हम मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेंगे और उससे हम मेंटेनेंस जो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है उसके मुताबिक उसे करके उसकी जो एरर है या इशू है वो फौरन रिजॉल्व कर लेंगे बिफोर इट डेड। मेथड हम इसे इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि जो सबसे पहले है वो डेटा कलेक्शन होगा फ्रॉम एक्सेलरोमीटर सेंसर ऑन CNC। अगर प्रैक्टिकली किया जाए, मैं प्रैक्टिकली करने की ट्राई करूंगा, लेकिन इसमें अगर प्रैक्टिकली किया जाए तो हम CNC मशीन पे
सेंसर लगा के उसके वाइब्रेशन डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग हमारे पास डेटा गिवन है, तो हम उसे रन करके चेक कर सकते हैं कि क्या एरर या किस तरह वो चाहता है। उसके बाद प्री प्रोसेसिंग है, उसमें हम फिल्टरिंग नॉइस और सेगमेंटिंग सिग्नल्स। दूसरे प्रोसेस में हम नॉइस को फिल्टर करते हैं और उन्हें सेगमेंट कर देते हैं कि कौन सी नॉइस आपकी हेल्दी है और कौन सी नॉइस फॉल्टी है, ताकि जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो सेगमेंट कर सके या सेग्रीगेट कर सके। तीसरे टॉपिक में हम फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे। इसमें हम 3-4 चीजों को यूज करते हैं, आरएमएस, कर्टोसिस, क्यूएनएस और एफएफटी। आरएमएस में आप रूट मीन स्क्वेयर लेते हैं कि आपके पास मीन जो वैल्यू आ रही है उसमें कितनी आ रही है, उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि वो मीन से कितना डेविएट कर रहा है जो सिग्नल आपके पास आ रहे हैं। और कर्टोसिस का मतलब है कि जो उसकी पीक पॉइंट है वो कितनी दफा आ रही है। अगर पीक ज्यादा है, बार बार आ रहा है, तो उसमें के उसमें एरर जनरेट हो रहा है, उससे आप उसे ठीक कर सकते हैं। और स्क्यूनेस का मतलब ये है कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है अगर वो नॉर्मल नहीं, एक साइड पे स्क्यूड है, तो इट्स मीन एबनॉर्मेलिटी है उसमें। और एफएफटी जो है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म कहलाता है। इसमें आप सबसे पहले जो आपके पास इसमें आता है एक टाइम और एम्पलीट्यूड का ग्राफ ड्रा करते हैं, उससे ये कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के ग्राफ में, ताकि आप फ्रीक्वेंसी से ये डिफाइन कर सकें कि कितना फ्रीक्वेंटली एक चीज चेंज हो रही है, उससे आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। और लास्ट में हम मॉडल को ट्रेन करेंगे बाय रैंडम फॉरेस्ट, एसवीएम और एएनएन। और सबसे लास्ट पे उसको एवेलुएट करने के लिए कि आपका मॉडल कितना बेहतर काम कर रहा है, उसके लिए एक्यूरेसी, F1 स्कोर और कंफ्यूजन मैट्रिक्स को देखें। इसमें हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ये हैं कि फॉल्ट डिटेक्शन जो इसकी एक्यूरेसी है 90%, ये हम एक्यूरेट रिजल्ट दे ताकि हमें पहले से पता चल जाए फॉल्ट आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद अर्ली प्रिडिक्शन की वजह से हमारा डाउन टाइम कम होगा और रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, क्योंकि ब्रेकडाउन पे आपकी कॉस्ट ज़्यादा आती है और प्रिवेंटिव पे कम आती है, और इससे आपकी मशीन रिलायबिलिटी जो है वो ज़्यादा इंप्रूव होगी। That's from- ठीक है, गुड। आप रिसर्च पेपर आपने इंडिकेट किया था? जी सर, पेपर। बस ठीक। और डाटा की एक्सेस भी है? जी सर, गूगल पे भी और GitHub पे भी। बस ठीक, दैट्स गुड। ठीक है जी। रिजवान जी, रिजवान के बाद शाहिद है। रिजवान, आप मैन्युफैक्चरिंग नेट के ऊपर काम कर रहे हो? ये जी आप। ठीक। ठीक है, इसको आप मुझे बताते जाए, मैं आगे कर देता हूँ। तो सर मैंने एक्सपेरिमेंट्स इनिशियल रन करके उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई थी सर, और उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को बेसिकली गैमा में फीड करके कर रही प्रेजेंटेशन उससे गैमा से बनाई। ठीक है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग नेट सर वैसे डिटेल में क्लास का भी यही टॉपिक और डिटेल में बता दी सर। ऑब्जेक्टिव इसका है कि इट्स एन ओपन सोर्स मशीन लर्निंग टूल बॉक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग व्हिच मिनिमाइजेस द रिक्वायरमेंट फॉर एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग। और स्कोप इसमें वेरियस मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग मॉडल्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड ऑन वेरियस मैन्युफैक्चरिंग डाटा। और इसका फीचर्स ये है कि ये इजी टू यूज है और स्टैंडर्डाइज्ड डाटा सेट्स को ऊपर अप्लाई करके इसकी बेंचमार्क से बनी। So this publication was published in 2023 in Software X, which is an Elsevier publication journal.
अच्छा, यहाँ भी एक छोटी सी करेक्शन लगा दो, एल्सवेयर अगेन इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट अ जर्नल। ठीक है, एल्सवेयर के बहुत सारे जर्नल्स हैं। वो आपको फिर देखने पड़ते हैं कि किस जर्नल में, ये एल्सवेयर के किस जर्नल में पब्लिश। हाँ, तो सॉफ्टवेयर एक्स हो सकता है जर्नल का नाम हो। तो बहरहाल ये कि एल्सवेयर एक ऑर्गेनाइजेशन है। सिमिलरली स्प्रिंजर एक ऑर्गेनाइजेशन है, IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदावी एक ऑर्गेनाइजेशन है, IET एक ऑर्गेनाइजेशन है, ACM एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये बहुत सारे काम करते हैं, तो उनमें जर्नल्स भी पब्लिश करते हैं। तो जब आप इनका इनका नाम लो सारे, तो थोड़ा सा बतात हो कि इनकी किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो जस्ट क्लैरिफिकेशन क्या आपको ये यहीं पे क्लियर हो जाए। ठीक है जी, तो ये आप कह रहे हैं कि ये यहाँ पे सर इसका कोड रिपॉजिटरी भी अवेलेबल है पब्लिश GitHub पे, हुआ हुआ है। और इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल है सर। ठीक। कोड्स इसमें सर इस तरह लिंक्स नहीं अवेलेबल, लेकिन जो पेपर है सर उसके जो रेफरेंस है उसमें सारे जितने भी डाटा सेट्स हैं उनके लिंक्स अवेलेबल है और पांच काउंट है। ठीक। ठीक। अदरवाइज भी सर इस पेपर में क्लेम था कि जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग लाइक का फ्रेमवर्क बनाया हुआ उसमें एक फंक्शन है जिससे हम जो इसमें उन्होंने नए डाटा सेट यूज किए हुए ठीक। ऑलरेडी क्यूरेटेड है और उनको कॉल कर सकते हैं विद कोड ऑफ लाइन ऑफ कोड। ठीक। तो लेकिन मैंने जब वो लाइन यूज करने की कोशिश की तो उसमें सिर्फ जो CWRW का जो बेयरिंग डाटा सेट है और 3D प्रिंटिंग का जो डाटा सेट है वो डाउनलोडेबल था। बाकी मतलब कोड से डाउनलोड नहीं हो सकते, वो सेपरेटली लिंक से उनको ऊपर सोर्स जो लिंक है उनसे डाउनलोड करने पड़ते हैं। फर्दर मैंने वैसे डिगिंग किया था, जो कोड की लाइन से जिसको रेफरेंस जहाँ से वो करती है और जिस लिंक को वो एक्सेप्ट करती है वो बेसिकली करप्ट हुआ हुआ वहाँ से ये कुछ डाटा सेट्स डाउनलोड नहीं होते, ठीक। कुछ हो जाते हैं। मैं तो इसमें सजेस्ट आपको ये करूंगा कि ये आपने भी इसी तरह से सिलेक्ट, इनमें से कोई एक डाटा सेट आप सिलेक्ट कर लो, मैंने फिर सर कोई 3D प्रिंटिंग की और फिर उसको अपना एक सिंपल सा फीड फॉरवर्ड बैक प्रोपेगेशन न्यूरल नेटवर्क के तहत उसको आप ट्रेन करके उसके ऊपर से क्लासिफिकेशन का कोई काम कर लो। जो उसने किया हुआ वही आप भी कर सकते हैं। मैंने इसी तरह हाँ, 3D प्रिंटिंग का सर ठीक है, बस पे यही आप आगे चलें। चले। इसमें सर इनिशियली मैंने पाइथन 3.14 इंस्टॉल किया था और विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस ये कोड VS कोड के ऊपर नहीं इंस्टॉल होता, डिस्पाइट मैंने सारी डिपेंडेंसीज भी जितनी इंस्टॉल करनी रिक्वायर्ड है और जितनी भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज वो भी इंस्टॉल की, लेकिन कभी कोड नहीं रन हो रहा था। तो आई अल्टीमेटली शिफ्टेड ऑन टू गूगल कोलैब, उस पे ये कोड सर रन हो गया था आफ्टर सम इनिशियल बग्स। उसमें सर मैंने रैंडम फॉरेस्ट, इसमें दो 3D प्रिंटिंग का डाटा सेट यूज किया सर, उस पर दो मॉडल अप्लाई किए हैं, एक रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन के लिए और फिर सर लीनियर रिग्रेशन मॉडल ठीक। डाटा सेट सेम यूज किया। तो जो आउटलाइन के जिस तरह मैंने इसको लेके गया हूँ सर उसमें मैंने पैकेज था वो इंस्टॉल किया, तो पिप कमांड है। फिर मैंने इसका जो 3D डाटा सेट अवेलेबल था उसको CSV फाइल को इंपोर्ट किया इसके अंदर, तो उसकी फीचर इंजीनियरिंग की है सर। उसमें कुछ कैटेगोरिकल वैल्यूज को कन्वर्ट किया न्यूमेरिकल वैल्यूज में, क्योंकि उससे आगे फिर वो क्लासिफिकेशन मैंने यूज करना था। और 75% डाटा मैंने यूज किया फॉर ट्रेनिंग एंड 25% जो ये 3D प्रिंटिंग का डाटा था वो यूज किया टेस्ट करने के लिए। कैटेगोरिकल वैल्यूज और न्यूमेरिकल वैल्यूज में क्या समझ आती है, क्या फर्क होता है? व्हाट डू वी मीन बाय कैटेगोरिकल वैल्यूज जो उन्होंने किया है? ये आपको भी बाज़ औक़ात नजर आएगा ना कि डाटा जो है या तो कैटेगरीज में होगा या फिर वो एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, बट दोज कैन बोथ कैन बी यूज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट। तो कैटेगोरिकल वैल्यूज कैटेगोरिकल वैल्यूज की एग्जांपल ये हो सकती है कि आप जब कोई एक चीज खरीदते हैं ना, तो उसकी प्राइसेस जो है वो सस्ती हो सकती है, दरमियानी हो सकती है, या बहुत हाई हो सकती है। तो तीन कैटेगरीज बन जाती हैं। एक्चुअल प्राइस तो होगी ना, लेकिन कैटेगरी तीन बना सकते हैं आप। तो दिस बिनिंग करके, दिस इज इनफैक्ट बिनिंग प्रोसेस। या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो स्टैटिस्टिक्स में जो है वो बेसिकली कैटेगरीज बना रही होती है। ये जो जर्नल्स की आपने सुना होगा Q1 जर्नल्स, Q2 जर्नल्स, यानी क्वार्टाइल 1 जर्नल्स, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 4, उनकी अपनी अपनी वैल्यू होती है। एक इम्पैक्ट फैक्टर हर एक का होता है। जर्नल्स की एक यानी जो क्वालिटी मैट्रिक्स डिफाइन होते हैं उनमें एक इम्पैक्ट फैक्टर निकालते हैं आप, या एक स्कोपस जनरल रैंक निकलता है। तो वो तो एक्चुअल होता है, वो उनकी एक्चुअल न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन उनको किसी एक क्वार्टाइल में प्लेस कर देना, दैट मीन्स यू आर मेकिंग कैटेगरीज। सिमिलरली जब आप गैट का एग्जाम दिया आपने, तो आप क्वार्टाइल
आपने इनफैक्ट परसेंटाइल आपका डिफाइन हुआ, 100 कैटेगरीज बनी, उनमें आप एक कैटेगरी के अंदर आप आ गए जी कि आप 99 परसेंटाइल मीन्स कि आप उस कैटेगरी में जो कि 99% अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं करंट लोगों के अंदर। तो ये कैटेगरीज में और इनमें थोड़ा सा आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, तो वो बात कर रहे हैं। ठीक है। इसमें सर जो क्लासिफिकेशन डाटा था उसमें मैंने रैंडम फॉरेस्ट यूज किया और यूजिंग द डिफॉल्ट पैरामीटर व्हिच वाज गिवन बाय द ऑथर, और उसमें जो मटेरियल टाइप थी उसको लेबल किया और बाकी जितने भी थे कॉलम उनको फीचर। इसी तरह से जो लीनियर रिग्रेशन थी उसमें सर रफनेस को मैंने एज अ लेबल सेलेक्ट किया और बाकी जितने भी फीचर्स थे उनको। ठीक है, गुड। ये सब उसके जो प्रीलिमिनरी रिजल्ट्स थे उसमें जो क्लासिफिकेशन थी वो सर 84% उसने रिजल्ट किया, और जो लीनियर रिग्रेशन थी उसमें एरर 12 और आर टू स्केल इफेक्टिव है। 0.89 उसका आर तो सर जब मैंने कंपैरिजन किया इसका जो रिजल्ट ऑथर ने दिए हुए थे वो ये वाले मॉडल्स उन्होंने अप्लाई किए हुए थे, वही फिर मेरा फ्यूचर वर्क डिफिकल्टीज फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वही सर वीएस कोड पे मल्टीपल ट्राइज करने के बाद वो एरर्स नहीं रिजॉल्व हो रहे थे, दैट्स व्हाई आई शिफ्टेड टू वीएस कोलैब, और डाटा सेट्स की एक्सेस टू द कोड वाज नॉट पॉसिबल और ओपन सोर्स लेकिन अवेलेबल है। बाकी सर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी सर डिफॉल्ट पे यूज करने की रीजन थी कि जब मैं अमेंड करने की कोशिश कर रहा था डिफॉल्ट के अलावा वो एरर हो गया, तो इन फ्यूचर वर्क मैं इसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो एड पैरामीटर्स। सर तो जो पेपर है सर उसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इसी 3D प्रिंटिंग के डाटा सेट पे अप्लाई किया और ही हैज क्लेम्ड कि ये 100% एक्यूरेट है। एक तो मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को अप्लाई करूंगा, वेरीफाई कर लूंगा कि ये वाकई 100% है या नहीं, और फिर इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन वेरीफाई करूंगा कि डिफरेंट या तो अगर कोई और डाटा सेट 3D प्रिंटिंग का ओपन सोर्स में अवेलेबल हुआ, अगर ना अवेलेबल हुआ तो फिर आई क्रिएट माय ओन डाटा सेट और फिर उसको दोबारा अप्लाई करूंगा, वेरीफाई करूंगा कि ये यूनिवर्सली अप्लाई हो सकता है ये सिर्फ इसी डाटा सेट पे। बाकी जो दो मैंने अप्लाई किए थे लीनियर रैंडम फॉरेस्ट और लीनियर रिग्रेशन, उनके स्कोर्स को थ्रू हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी मैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं कर पा रहा और वो एरर दे रहे थे डिफरेंट, तो फ्यूचर वर्क में ये कि इनको भी मैं इम्प्रूव करेंगे। ठीक है रिजवान, इसमें सिर्फ ये करना है आपने कि 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड आपको रिसर्च पेपर भी सेपरेट मिल जाएगी, उनमें से किसी रिसर्च पेपर को आप साथ अलाइन कर लो और उसके रिजल्ट्स को देखते हुए या उसकी अप्रोच को देखते हुए कि उसने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, आप थोड़ा सा अपने आप को और अलाइन करने की कोशिश करो। ठीक, गुड वर्क, थैंक यू। आ जाए जी। I'm Charlie Brown. Gentlemen, so far we have done extensive use of AI to work for us. Now we use AI to work for ourselves. Let's predict our call value using AI. I have used data set of tokens which is currently available to predict car value of my. The research paper which I followed is machine learning for predicting car value prices using granular vehicle equipment information. The data sets was of Germany and the author was not having the rights to publish data set. So I used data sets and Pakistan, Hopkins, and same I found a code from Hokkaido related Hopkins. And I choose the same methodology which he has followed to predict the car value. इस पेपर में अगर आप सिर्फ देख लें, अभी जो बात थोड़ी देर पहले की थी, एल्सवियर इसका पब्लिशर है, लेफ्ट साइड पे उसका आइकन बना हुआ है। जर्नल का नाम है एक्सपर्ट सिस्टम्स विद एप्लीकेशंस, जर्नल का नाम है। और बाकी इसका इशू वॉल्यूम नंबर इसी के अंदर थोड़ा सा इन्होंने इसको खींच दिया है, तो अगर इसमें आप देखेंगे तो वो भी कहीं पे इसका इशू नंबर वॉल्यूम नंबर जो है वो नज़र आ जाएगा।
और ये उसका उसके अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उसके ऑथर्स हैं। तो दिस इज दी डिस्क्रिप्शन हाउ टू रीच के क्या है इसके अंदर। डिटेल्स जो है वो पेपर के ऊपर लिखी होती हैं। ठीक है जी, आगे चलो। मैंने स्विच में कमांड क्रिएट को पहले डाटा सेट मैंने एक्वायर किया उसकी प्रिपरेशन, फिर डाटा क्लीनिंग सबसे मेन इसमें काम था, और उसकी प्री प्रोसेसिंग जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डाटा और प्रेडिक्शन, फिर एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के लिए जहाँ पे पहले मिसिंग थी या लाइटिंग में थे या प्राइसेस ग्रोथ में थे, उनको एक में लेके आए मैक्स में स्टैंडर्डाइज करने के लिए, और फिर डाटा उसकी जो मिसिंग थी उसको मेन या ग्रेडिंग वैल्यूज हमने प्लग इन की, और फिर लास्ट में फीचर सिलेक्शन की गया जिसकी बेसिस पे हमने कार वैल्यू प्रिडिक्ट करनी, और लास्ट में अपने मॉडल को ट्रेन किया गया और फिर प्रिडिक्शन की गई। पहला ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ डाटा सेटअप और उसकी प्रिपरेशन, उसमें लाइब्रेरी से इंपोर्ट की गई है, फिर डाटा लोड किया गया उसको CSV फाइल, और उसकी की फीचर आइडेंटिफाई किए गए हैं, क्या फीचर्स हैं, ईयर्स कितने हैं, किस ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, माइलेज क्या है, इंजन सेक्शन क्या है, ब्रांड क्या है, मॉडल क्या है, ये चीज़ें उसमें डिफाइन की गई। फिर डाटा क्लीनिंग की गई, जैसे कि उसके कॉलम सेट्स किए गए, उसकी प्राइस वैल्यू मैंने टारगेट वैल्यू रखी है, और जो फीचर्स डिफाइन किए हैं, ईयर्स, माइलेज, इंजन्स, ब्रांड्स, मॉडल्स, ट्रांसमिशन टाइम, फ्यूल टाइम, लोकेशन। सेकंड, उसके स्टैंडर्डाइज किए डाटा, फिर उसके फीचर्स को ड्राइव किया, जैसे व्हीकल एज क्या होगी, और लास्ट में जो मिसिंग एंट्रीज थी उसको मीडियन या मीडियन जीरो नेक्स्ट की वैल्यूज को मीडियन वैल्यूज के ऊपर प्लग इन किया गया आपने मिसिंग वैल्यू। सेम ड्राइव फीचर्स और आउटलाइन फिल्टरिंग की गई, और मिसिंग वैल्यूज की स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताया। एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस में क्या किया गया, समरी बनाई गई कि इनका कितनी भी गाड़ियों की अभी वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसका एनालिसिस किया गया। फिर प्राइस की डिस्ट्रीब्यूशन की गई, किस बेसिस पे कहाँ के प्राइसेस चल रहे हैं, और ट्रेंड देखा गया कि प्राइस किस वैल्यूज में चल रही है अक्सर मार्केट में, जिससे एंटी रिडक्शन के लिए प्ले के तीन बड़े ब्रांड्स हैं, टोयोटा, होंडा और सुजुकी। रिमेन स्टेक होल्डर्स हैं बाकी दूसरे प्रोग्राम और डिफरेंट कंपनीज हैं जिनकी वैल्यूज कम है। मॉडल ट्रेनिंग की भी है, दोनों मॉडल को यूज करते हुए लीनियर रिग्रेशन और प्लानर फॉरेस्ट। अभी सिंपली मैं जो पहले डाटा ट्रेनिंग के डिफरेंट सोर्स उठाए थे, तो उसके बाद ट्रेनिंग के डिफरेंट सोर्स उठाए हैं, एंड एंड जो मैंने परफॉर्म किया जिससे क्या मेरा लाभ थे मैंने अपनी गाइड से डाल के 2018 में मेरा मॉडल है उसका, कितनी मैनेज कर सकती है, ट्रैकिंग नंबर है, लैब का है, 15 है, तो 15 है, और स्टेशन में प्रेडिक्ट करके वैल्यू बताई है, और ये 31.35 लैक्स के लिए जो कि अप्रोक्सीमेट 87% एक्यूरेट होंगे। अब इसी को मैं डिफरेंट मॉडल पे ट्रेन करने हैं और उसके फ्यूचर टास्क में होंगे, तो मॉडल वैल्यूएशन करूंगा, डिफरेंट सेंसिटिविटी का डाटा और स्वास्थ्य वैल्यूएशन करूंगा, डिफरेंट मॉडल्स को दूसरे के लिए अपने जो मॉडल्स हैं उनकी एक्यूरेसी को चेक करूंगा। आपका पैरामीट्रिक ट्यूनिंग करूंगा यूजिंग रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट और रिसर्च मेथड्स को यूज करते हुए लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी टारगेट वेरिएबल फ्यूल और उसकी डिफरेंट चीजें चेक करूंगा, और लास्ट अपने फीचर्स को ब्रांड्स के हिसाब से और उसको क्लस्टर करूंगा, और एंड टू मॉडल कंपैरिजन करूंगा एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट विद ग्रेडियंट बूस्टिंग और एक्चुअली बूस्ट एंड न्यूरल नेटवर्क्स फॉर बेटर एक्यूरेसी कंफर्म। तो आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे पहले क्या? बस वही मैंने कहा जो डाटा सेट पेपर था उसका डाटा सेट मेरे पास अवेलेबल नहीं, मैंने हाँ। डाटा सेट अपना प्रस्थान का जो अवेलेबल था वो यूज करते हुए मेथोडोलॉजी में यूज की पेपर। हाँ तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज। मैंने कहा दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ठीक। जी शीनी, आप बताएंगे, बैठ के देना चाहती हैं और चॉइस, खड़े होना है आपकी चॉइस। अच्छा, ठीक है। आपने मुझे मेल किए, ईमेल किया मैं?
आपने प्रेजेंटेशन भी भेजी हुई है, प्रेजेंटेशन? अच्छा, वर्ड डॉक्यूमेंट खोलो। चलो, आप बताओ। कैसे आप इधर आना चाहती हैं? आपकी चॉइस। यू कैन स्क्रॉल। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shireen Fatima, and the paper that I'll be presenting is Deep CFD, Efficient Steady State Laminar Flow Approximation with Deep Convolutional Neural Networks. Since my field is fluid mechanics, I tried to find a paper that had an implementation in mechanical engineering. So I've used this paper, and basically, CFD has a real world implementation in mechanical engineering and fluid dynamics as well. In this paper, I have used CFD in this paper has presented some CFD simulations. This paper has computer CFD simulations in which we know that CFD simulations are quite expensive and time consuming. So the author has presented another alternate. He has used this deep CFD using convolutional neural network approach to calculate the simulations, and that would be more efficient in time and cost. The author has presented 981 simulations, and he has presented a data set as well, and the code is available also. Since I know that the title explains the steady state laminar flow fields directly from geometric and boundary conditions. Laminar means a smooth flow, steady means the time was constant, and another thing was yes, the geometric and boundary conditions were using as the features. The output was velocity at two dimension x and y, and another thing was pressure. These were the outputs that were calculated in the simulations. These are the bibliographical information. The title was that I've explained. The authors were Miguel, Philip, and Ricardo. There was another author that was a student from NUST, Electrical Engineering Department. The publication is in Archive. The code repository is also given at GitHub. The data source is also available at Zenodo. I've tried to run this in Google Colab, but the problem was थोड़े से एरर आ रहे हैं. अभी उन्हें कर रही हूँ कोशिश हटाने की. इस पेपर का ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है, जो सीएफडी सिमुलेशंस कंडक्ट ऑलरेडी की गई हैं डेटा सेट के अंदर, उसे सीएनएन के थ्रू दोबारा कंप्यूट किया जाए, क्योंकि जब हमारे पास लार्जर डेटा होता है तो उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है और ज़्यादा कॉस्ट लगती है. एट अ लार्जर स्केल थ्रू सीएनएन उसमें टाइम और कॉस्ट जो है दोनों एफिशिएंट हो जाएंगी. With the help of this approach, हमने Navier-Stokes equation use की थी, mass and momentum equation. उसके अंदर ये 2D dimension में थी, along x and y direction. इसके अंदर different obstacles use किए गए हैं. उसके अंदर different shapes use किए गए हैं, circle, triangle, square. Different obstacles were used. According to that, different simulations were carried out. Approximately 981 simulations. जिसके अंदर वेलोसिटी अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस कैलकुलेट किया गया था, और जो प्रेशर उसके ऊपर आ रहा है उन ऑब्स्टिकल्स के थ्रू वो कैरीड आउट किया गया था. अब इसके अंदर जो मेरी अप्रोच है वो ये है कि सिंस इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट यूज नहीं किया गया, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट इम्प्लीमेंट करके इसे थर्मोफ्लूइड्स की तरफ लेके जाऊँ, जिसकी एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर.
डेटा सेट के अंदर ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ 981 सिमुलेशन ली गई हैं, लेकिन इसके अलावा डिफरेंट ईपॉक्स भी इसके अंदर कंसिडर किए गए हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेटली पेपर 5000 के करीब ईपॉक्स थे, जिसमें टोटल 5 आर्किटेक्चर्स लिए गए थे, जिसमें डिफरेंट शेप्स थे, जिनमें से कुछ को उन्होंने ट्रेनिंग के लिए कंसिडर किया गया था और कुछ को टेस्टिंग के लिए। इसके अंदर ट्रेनिंग का मॉडल जो यूज हुआ गया उसके अंदर मीन स्क्वायर एरर मेथड के थ्रू यूज किया गया है, ताकि जो बेसलाइन वाला मॉडल गिवन है और जो कंप्यूट किया गया है उसके दरमियान कितना एरर आ रहे वो पता चले, और जो कंप्यूटेशन के बाद एरर पता किया गया है वो काफी कम है। दैट मीन्स डीप सीएफडी जो सीएनएन मॉडल यूज किया गया है वो मोर एफिशिएंट है और ज्यादा कॉस्ट के अंदर हमें बेहतर पड़ता है। मेरा जो मकसद है वो मैं बता चुकी हूँ कि मैंने टेम्परेचर की फील्ड को मैं इसमें इम्प्लीमेंट करना चाह रही हूँ, जो कि अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। अभी मैं इसकी बेसिक चीज़ें पढ़ रही हूँ, जैसे इसमें एक यूनिट भी डिफाइन किया गया है। अब यूनिट के अंदर ये है कि इसके अंदर एसडीएफ एक फंक्शन है मैथमेटिक्स का, डिस्टेंस जो कैलकुलेट किया गया है हर ऑब्जेक्ट से लेके उसके दरमियान एक डिस्टेंस आता है मेरे ख्याल में, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसको कैलकुलेट करना। इसमें इनकोडर और डीकोडर भी हैं। अब इनकोडर और डीकोडर के अंदर क्या चीज़ें यूज़ की गई उन्हें डीपली पढ़ रही हूँ। इनकोडर इतना मुझे समझ आया है कि इसके अंदर जो फीचर्स हम यूज़ करें, जिसमें हमारी ज्योमेट्री है इसकी, कि अगर स्क्वायर है सर्कल है तो क्या ज्योमेट्री होगी, और बाउंड्री कंडीशंस जो होंगी जो फ्लूइड फ्लो के लिहाज से होंगी वो पुट की जा रही। जो आउटपुट है जो डीकोडर है उसके अंदर वो वेलोसिटीज आपको देगा और प्रेशर देगा। अभी तक इन शॉर्ट मुझे ये समझ आए। आपके आप आपका क्विज है जिन्होंने आपके तरीके का काम उठाया सर का मैंने सुना था। इनका जी सर, सीएफडी में था। मतलब सीएनटी पे था और एक और भी साहब है जिनका किसी सीएनटी से रिलेटेड था। मैंने सीएफडी सुना था। सीएनएन पे ये काम कर रहे हैं तो आप दोनों से असिस्टेंस ले सकती हैं अपने काम के लिए। ठीक है। ठीक है जी, एक्सीलेंट वर्क्स। मेरे ख्याल में एवरीवन हैज वर्क वेरी इंटरेस्टिंगली और आपके टॉपिक्स भी अच्छे हैं, आपने इंटरेस्ट भी लिया है, काम भी किया है। तो इसके जो वेटेज मैंने रखी है, आई हैव गिवन फुल मार्क्स टू एवरीबडी। तो आपके वो उसमें डिस्प्ले आ जाएगा, आप जब अपने चेक करोगे अपने कलम के ऊपर, और आगे भी इसको इस तरह ही लेके चलें और इम्प्रूव करें। और ये जो प्रोजेक्ट का फेज है मैंने ये पर्पसफुली रखा हुआ है। एक तो इसमें डेफिनेटली लर्निंग एक आपकी हर एक की अच्छी होगी, प्लस के दिस आल्सो बूस्ट एवरीबडी टुवर्ड्स द अपर ग्रेड्स, क्योंकि दीज आर द मार्क्स व्हिच supposedly would be given full to everybody if they are doing everything in the right direction. So take it in the same sense। और again जो मेरा एक और मैंने शुरू में पॉइंट बताया कि ऐसा टॉपिक लेके चले जिसको आप अपने थीसिस के अंदर आगे लेके चल सकें। इनिशियल होमवर्क हो जाएगा आपका, उसको आप रिफाइन करेंगे तो आपका थीसिस डिफाइन हो जाएगा। मेन लोग जो डिले होते हैं वो थीसिस में टॉपिक सिलेक्शन पे डेट होते हैं, और काम तो हो जाता है। तो उस पर्सपेक्टिव से इफ यू आर इंटरेस्टेड, सो एवरीबडी कैन टेक सम टॉपिक और उस पे आगे वो अपना किसी रिलेटेड हमारे जो भी लोग हैं, एवरीबडी वुड बी हैप्पी टू वर्क विद यू इफ यू टेक अ टॉपिक फ्रॉम सम एआई डोमेन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशली, क्योंकि the publications are easier at the moment in comparison to any other mechanical engineering domain जहाँ पे ये आपने फ्यूज नहीं की इस चीज को। तो you will be able to get some conference or journal publication as well as it would be a topic which would be accepted in a very fast way। तो इसको इस पर्सपेक्टिव से भी सारों ने देखना है। ठीक है जी, सो ब्रेक हम छोटी सी करते हैं, बट उससे पहले क्विज ले लिया जाए, क्या ख्याल है? और फिर वी कैन हैव अ स्मॉल ब्रेक।